इसके बाद का प्रोसेस काफी सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर राउंडर, उसका पॉइंटर इधर रखना है, पेंसिल इधर रखनी है, एंड यू ड्रॉ आर्क लाइक दिस। ओके, जहां पर ये आर्क इसको कट करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर रूट 2। अपने डिवाइडर का, अपने कंपास का जो पॉइंटर है वो यहां पर रखेंगे एंड विल कीप द पेंसिल हियर और विल ड्रॉ इट लाइक दिस, और यहां पर आ जाएगा मेरा रूट 3। Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to talk about irrational numbers. This is for 9th standard ICSE. In the previous video, we started the topic called rational numbers and irrational numbers. In the previous video, we talked about rational numbers. Today, we are going to talk about irrational numbers. So, what do we mean by irrational numbers? Irrational literally means that they are not rational numbers. So, which all numbers can be considered as irrational numbers? तो सबसे पहले तो आएंगे all those numbers जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है, that is they are not perfect squares. तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट अपन ले रहे हैं तो it would be considered as a irrational number. For example, root 3, root 5, root 7, root 2, root 8, for that matter root 11, root 10, root 4, root 9, root 1 won't be considered as irrational numbers क्योंकि वो तो rational numbers बन जाएंगे क्योंकि उनका रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता उसको अपन बोलेंगे irrational numbers. First thing, yes. So root exist नहीं करता मतलब root एक integer नहीं है. That is they are not a perfect square. दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं the numbers जिनका division non-recurring दूसरे कैटेगरी में आएंगे numbers जिनका decimal expansion non-terminating और non-recurring रहेगा, मतलब वो terminate भी नहीं हो रहा और recur भी नहीं हो रहा। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि there are 3 categories, either it would terminate or it would not terminate. If it doesn't terminate, then it can either be recurring or non-recurring. मतलब same numbers आते जाएंगे, जैसे 3.20 divided by 3 होगा, तो अगर अपन 20 divided by 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 6.6666, यहाँ पर recurring हो रहा है, so this will not be considered as an irrational number. This would still be a rational number. पर अगर 22/7 लिख दूंगा तो that is the value of pi, तो it would be 3.14 and then we would have different numbers. ये recurring नहीं है, yes? तो ये भी consider होगा as a irrational number. और फिर आएंगे numbers like pi or 22/7 actually is a very close approximation of pi. It is not actually the value of pi, but still this is also non-recurring, non-terminating decimal expansion. तीसरे आएंगे numbers like pi and e जो constants हैं and they are non-recurring, non-terminating. तो इन ये भी categorize हो गए under irrational numbers. अभी फटाफट अपन देख लेते हैं कि what are the basic things that we have when we talk about irrational numbers. So पहली चीज है, if you add irrational numbers, say root 5 plus root 5 अगर इन दोनों को add करेंगे तो it is not going to be equal to root 10. सबसे important चीज है, many students end up doing this mistake. तो अगर इनको add करना है तो how are we going to add? The common part in them is root 5, so I'll have root 5 here and इसमें से 1 रह जाएगा, इसमें से 1 रह जाएगा, so it would be root 5 multiplied by 2 or it would be written as 2 root 5. Okay, so whenever we add rational numbers, this is whenever we add irrational numbers, this is how we are going to add them, provided that ये root के नीचे का जो number है वो exactly same है. अगर वो अलग है तो इनको भी अपन directly add नहीं कर सकते. दूसरी चीज अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो yes, that is a different thing. So if I have root 5 minus root 5, then it is going to be equal to 0. वैसे भी आ जाएगा, पर अगर ये दो अलग अलग नंबर
जैसे √7 है और -√5 करूंगा तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू √2, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये वी हैव टू कीप दिस इन माइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज 10th में कई बार ऐसा हो जाता है कि रूट्स आ जाते हैं और बच्चे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं या फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो √7 -√5 can never be equal to √2, and logically we cannot or mathematically we cannot subtract these two numbers। किनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जिनके रूट के नीचे का जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं अपन? तो when we talk about multiplication, then we have say √7 multiplied by √5, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इन दोनों को अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन अंडर द सेम रूट, गिविंग मी द फाइनल आंसर एज √35। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के साथ अगर अपन उनको डिवाइड भी कर सकते हैं तो अपन करेंगे से √7 डिवाइडेड बाय √5, then it would be equal to √7/5। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने अलग से बनाया है, हाउ वी डील विद इरेशनल नंबर्स एंड हाउ वी डू बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑन इरेशनल नंबर्स। इसका लिंक इधर ऊपर भी दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इन केस यू आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक डिफिकल्ट, प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो, उसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई गई है। अभी आगे देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर वे। ये भी बहुत क्रूशियल चीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज आस्क्ड बोथ फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई, सो ध्यान में रखकर इधर प्लीज ध्यान दीजिएगा व्हेन आई डू दिस, बिकॉज ये कई बार स्कूल्स में उतने अच्छी तरीके से नहीं बताया जाता। सो हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन अपन ने सीखा है इससे पहले, डेसिमल्स उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना काफी इजी है, पर हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकर भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, उसको नंबर लाइन पे लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर अपन एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज आवर गुड ओल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अभी आप देखेंगे, अभी मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, दो मेथड्स है ये करने के। एक मेथड है जो 10th आईसीएसई 9th, एक मेथड है जो 9th आईसीएसई में सिखाया जाएगा और एक मेथड है जो 9th सीबीएसई में सिखाया जाएगा। अपन दोनों मेथड सीखेंगे, दोनों मेथड काफी सिमिलर है, बट दोनों अलग-अलग बोर्ड्स में सिखाए जाते हैं। there shouldn't be an issue if you do it with either of the methods, but please confirm it with your school teacher which of the two methods would be advisable by that particular teacher. So first thing is we have to draw a number line like this. इधर बीच में 0 दे देंगे. So let's have 1 here and 2 here. So I'll have a -1 here and I'll have a -2 here. Okay? ये मेरी नंबर लाइन हो गई। तो अभी अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए व्हिच शुड बी इक्विडिस्टेंट टू माय डिमेंशंस। तो ये जितना लंबा मेरा नंबर लाइन का एक सेगमेंट होगा उतना ही लंबा मेरा ये लाइन होना चाहिए। ओके, सो इफ दिस इज 1 यूनिट, दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, जनरली 1 यूनिट लीजिए अराउंड 2 या 2.5 सेंटीमीटर, ताकि आर्क्स ड्रॉ करने में इजी हो। अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो तो बहुत छोटा हो जाएगा और आर्क्स ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाएगी। सो ईदर you take 2 centimeters, 2.5 centimeters or 3 centimeters. My personal favorite is 2.5 centimeters is equal to 1 unit. ऐसे करने से क्या होगा, ये एक यूनिट हो गया, तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग से डिजाइन करें। मैं इसको बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B, इसको बोलता हूं C और ऐसे ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन। ओके, तो आपको ये दिखेगा कि ABC फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है तो बेस्ट पार्ट इज
कि अपने को मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? विल हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी मैं AB स्क्वायर कितना है? इट इज 1 यूनिट, सो आई से 1 स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है? इट इज 1 यूनिट, so I'll have 1 square, so it would be equal to 1 square is 1 and 1 square is 1, so it would be equal to 1 plus 1, so that is equal to 2. ये होगा मेरा AC स्क्वायर। तो मेरा AC हो जाएगा √2। so basically हमारा AC लाइन जो है वो √2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद का प्रोसेस काफी सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर राउंडर, उसका पॉइंटर इधर रखना है, पेंसिल इधर रखनी है, एंड यू ड्रॉ आर्क लाइक दिस। ओके, जहां पर ये आर्क इसको कट करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर √2। ओके, अभी इसके बाद अगर मुझे √3 करना है तो मैं क्या करूंगा? काफी सिंपल सी बात है, मेरे पास √2 आ गया है, so I'll call this point as D, and at point D I am going to draw a point E, a line to point D from a I'll draw perpendicular at point D, और ये DE मेरा perpendicular हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरा। मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ADE। ADE में क्या होगा? तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, अभी मेरा AD कितना है? मेरा AD है √2, उसको स्क्वायर किया प्लस 1 स्क्वायर किया, so this becomes 2 plus 1, so that is equal to 3. So मेरा AE आ गया √3. So effectively if I want to find √3, उसके बाद वाला प्रोसेस काफी सिंपल रहेगा। अपने डिवाइडर का, अपने कंपास का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर रखेंगे, एंड we'll keep the pencil here और we'll draw it like this, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा √3. So learners, this is how we are going to draw irrational numbers on a number line. This is the first way of doing it. Okay. In the second way, what are we going to do? जो generally see. In the second way, what are we going to do? ये generally सिखाया जाएगा CBSE में। तो instead of drawing the second one here, the second line here, वहाँ पर क्या किया जाता है? तो we draw the second line. I'll do it with a red marker so that you understand the difference कि क्या हो रहा है. Yeah. So instead of drawing the line here, we'll draw the line perpendicular to this line. Same dimension का line यहाँ पर draw करेंगे, तो जो मेरा point होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। So and यहाँ पर right angle triangle हो गया। Same way, this is √2 units, this is 1 unit. तो जब मैं ये वाली line draw करूँगा, तो this line is going to be equal to exactly this line. तो या तो आप DE यहां पर निकाल सकते हैं या फिर DC, इधर CF यहां पर निकाल सकते हैं अपन, और एग्जैक्टली सेम सिनारियो हो जाएगा। सो वी एंड अप विथ एग्जैक्टली द सेम आंसर। सो दोनों केसेस में द पॉइंट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम बिकॉज़ इट इज द सेम पॉइंट। कुछ टीचर जो है वो ये वाली मेथड से सिखाएंगे जहां पर वी हैव ED is like here and we get the √3 here, और कुछ टीचर जो है वो ऐसा सिखाएंगे जहां पर ये दूसरा 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ किया जाएगा, that is CF, and then from there we will draw the line into the arc. So this is also going to be equal to √3. If we do it with so this red pen is the alternative method of doing this thing again is, so यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AF is equal to AC square, AF square is equal to AC square plus CF square, which is eventually going to be equal to √2 square plus 1 square, so that is 2 plus 1, so that is 3. That would give me AF is equal to √3. Okay, so ये मेथड और ये मेथड एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस फर्स्ट वाली मेथड में परपेंडिकुलर is drawn at this point and the second method
perpendicular is drawn at point C. दोनों methods अलग अलग teachers use करते हैं, so whichever you feel comfortable, whichever your teacher feels comfortable with, go with that method. So this was about drawing an irrational number or locating an irrational number or plotting an irrational number on a number line. Let us go ahead and see how we can prove that the given number is an irrational number. ये 9th standard में ICSE के लिए आता है, 10th standard में CBSE के लिए आता है and 10th standard में state board के लिए भी आता है. So this is how we are going to prove whether root 2 is an irrational number. जब 9th ICSE की बात करते हैं अपन, then it is proved in 3 different ways. Okay, so the first way, now what do we have to prove? That root 3 is we have to prove that root 2 is irrational. उसका पहला मेथड है डिवीजन मेथड. So first way to prove it is division method. डिवीजन मेथड में क्या होता है? तो we find the value of root 2 using division method. तो कैसे करेंगे वो? So अब मैं आपको दिखाता हूँ how we are going to do the division method. Please pay attention to this because this is something very important and it is taught in earlier classes. 8th वगैरह में ये रूट निकालना सिखाया जाता है, but majority of the students forget it over the course of time. So मेरा 2 है, उसके बाद I put a trail of zeros. अब इधर मैं 4 zeros निकाल 4 pairs लगा रहा हूँ because I want to find the root till the 4th decimal. Okay? उसके बाद भी देखेंगे अपन क्या होता है, but we will find the trail till we will find it till the 4th decimal for the time. So इधर क्या करना है, इधर थोड़ा दूर, इधर distance पे I'll write 1 because 1 is a perfect square which is smaller than 2. So then I'll have to take 1 here, I add that 1, I write that 1 here, I write that 1 here as well. ये थोड़ा सा tricky है, यहाँ से subtract करेंगे, यहाँ पे add करेंगे. So this gives me 2, this gives me 1. अभी इन दोनों को, ये दोनों zeros इधर आ जाएंगे. Okay? So अभी क्या करना है, तो मुझे since ये decimal के बाद वाले zero इधर एक decimal आ जाएगा. And what am I going to do after this? मुझे एक नंबर यहाँ पर लिखना है in such a way that उसका multiplication should be less than 100. एक नंबर यहाँ पर ऐसा लिखना है 2 के बाजू में जिसका multiplication should be 100. Now, if I write 4 here, I will get 96. 5 लिखूंगा तो कितना आएगा? It would become 25 multiplied by 5, तो वो हो जाएगा 125, इसलिए ये नहीं लिख सकता. 24 multiplied by 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 96. इसलिए यहाँ पर 4 लिया गया है, ना कि 5. ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड दिस कि एक ऐसा नंबर यहाँ पर डालना है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई किया जाए ये पूरे नंबर को, तो द आंसर शुड बी लेस देन द नंबर दैट वी गेट हियर. तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे अपन. सब्ट्रैक्शन किया तो इधर आ जाएगा 4 और ये वाला जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई किया था इट वुड गेट एडेड हियर, सो इट वुड बिकम 28. अभी यदि दो जीरोस फिर से नीचे आ जाएंगे यहाँ पर. अभी इसके 28 के बाजू में एक नंबर अपन को ऐड करना है which should be smaller than this number. ओके, तो कैसे करेंगे वो? तो 28 है, उसके बाजू में अगर 1 करेंगे और उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज द की, जो नंबर यहाँ पर ऐड हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इट गिव्स मी 281. ओके, अगर 2 करूंगा तो वो 360 के ऊपर चला जाएगा. सॉरी, अगर मैं 2 करूंगा तो 560 के ऊपर चला जाएगा. इट शुड बी लार्जर देन दिस नंबर, इसलिए मैं 2 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई हैव अ 1 हियर, आई हैव अ, ये 4 इधर लिखना भूल गया था तो अभी लिख देता हूं. देन आई हैव 1. ओके, ये 1 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर 281 आ जाएगा एंड आई एंड अप विद 282
और इधर आ जाएगा 119। अभी फिर से दो और जीरो है जो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। अभी मुझे 282 के बाजू में एक और नंबर ऐड करना है, so I have to do 282। उसके यहाँ पर एक और नंबर ऐड होगा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट मल्टीप्लिकेशन शुड बी लेस देन दिस नंबर। तो अभी ये कैसे करेंगे? तो अगर 5 से करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे पहले अपन। I always prefer 5 to be my first number to multiply. Why? Because यहाँ पर है 200, 280 और यहाँ पर है 11,000। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, सो ये हो जाएगा 2000। जब यहाँ पर 5 आ जाता है तो हो जाएगा 2800। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इट शुड कम टू समथिंग ओवर 10,000। ओके, ये ज्यादा भी हो सकता है। सो लेट अस चेक आउट व्हाट वी गेट। सो 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो आ गया 5 5 25, 2 10 12 41 10 40। ये काफी बड़ा नंबर हो गया, तो we cannot use it। तो we'll have to use a number smaller than this। तो उससे एक नीचे देख लेते अपन, 2824 मल्टीप्लाइड बाय 4। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक नंबर चेंज हो जाता है तो पूरा मेरा फाइनल आंसर काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी एक नंबर कम से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 4 16, 8 9 32 3 1 1 296। या तो ये नंबर मेरे नंबर से छोटा है, सो आई कैन यूज इट एंड आई हैव 11296। ओके, अभी मेरे को कौन से नंबर से करना पड़ा था मल्टीप्लाई? 4 से। सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऐड अ 4। ओके, मेरा आंसर आ गया 2828 और इधर मेरा आंसर आ गया 604। अगर इधर ये जो 4 है ये इधर ऐड हुआ था, इसको इधर भी ऐड करना आपने को। अभी अगर अगला वाला नंबर 1 आ जाता है तो इट वुड बिकम अ रिकरिंग डेसिमल। ओके, पर अपन देखेंगे कि वो वाला एक्चुअल में 4 आता है या नहीं आता है। सो लेट अस ब्रिंग दीस टू zeros डाउन हियर and we'll have the 0 and 0 here। या इसके बाद इसके साथ क्या होगा? तो अभी इधर 28 आ गया। ओके, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर अगर 1 आएगा तो मेरा यहां तक तो रिकरिंग हो सकता है। सो चेक करते हैं कितना है। यस, तो इधर मुझे चाहिए 60,400 और इधर मेरे पास है 2800। तो 2800 के बाद अगर एक और नंबर ऐड होगा तो बेसिकली मैं 3 से ट्राई करूंगा पहला और देखूंगा कितना आएगा। तो अगर आप देखोगे कि ये 28,000 हो रहा है, 28,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली 60,000 के ऊपर चला जाएगा। इसलिए वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय 3, विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि 28,000 है, 28,000 का डबल अप्रोक्सीमेटली 56,000 के करीब आना चाहिए, which is pretty close to 60,000। अगले वाले का और बड़ा पड़ेगा, इसलिए so we'll multiply by 2 and we'll end up with 2 2s are 4, 16, 5, 16, 5। हाँ, so 5 6 5 6 4। Okay। फाइव सिक्स 4। सो ये हो गया मेरा इधर वाला आंसर। तो अगर इसके मुझे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया था, तो इधर मैंने 2 ऐड किया है, इधर मैंने 2 ऐड किया। ओके, तो जब भी अपन ऐसे करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी इवन लार्जर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि इट इज नॉट रिकरिंग, और ये प्रोसेस अपन करते जाएंगे तो काफी समय तक प्रोसेस तो चलता रहेगा, पर मेरा आंसर नॉन रिकरिंग आएगा, मेरा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा।
इसके ऊपर से we can conclude that since the decimal expansion is non-terminating and non-recurring, we can conclude that root 2 is a irrational number. So this is going to be the value of root 2, and you see that the decimal expansion would not terminate and nor would it recur. That's why we can conclude that root 2 is a irrational number. Now let us go ahead and talk about indirect method of proving that root 2 is a irrational number. अब ये indirect method क्या होता है? तो this is a kind of method that is generally used to prove something that is very basic. तो इसमें दो पार्ट होते हैं. पहला भी assume कि जो अपन को prove करना है वो incorrect है, and then we prove that our assumption is incorrect. Okay? And since our assumption is incorrect, जो प्रूव करने वाली बात है वो सही होगी. क्या? तो root 2 is irrational. Now this is the indirect method. तो इसमें पहली चीज क्या होगी? We'll say that let us assume that root 2 is rational. क्या होगा मेरा पहला पॉइंट कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रूट 2 रैशनल है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट हाउ माय assumption is incorrect. Okay, so therefore root 2 can be written as a upon b, where a and b are co-prime. Co-prime मतलब क्या? तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बस एक चीज कॉमन है, and that is 1. Okay, so the common factor between a and b is 1. That's why they are co-prime. अभी अगर मैं ये assume कर रहा हूं तो इसके ऊपर से ये मैं deduce कर रहा हूं. Okay, अभी इसके बाद क्या करेंगे? So therefore मैं स्क्वायर कर सकता हूं दोनों साइड्स को. So I say by squaring both sides, अगर स्क्वायर करता हूं तो मेरे को मिलता है 2 is equal to a square b. इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? a square upon b square. इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? तो a square is equal to 2b square. ओके, ये बहुत क्रूशियल है. अगर a square is equal to 2b square means what? a is a even number. So a square is a even number, है ना? कोई भी चीज को अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है किसी और चीज को, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज इवन नंबर रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पर बेसिकली ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है. ओके, और यहाँ पर a और b कोप्राइम भी है, और दूसरी एक चीज है कि दे आर आल्सो इंटीजर्स. तो अगर ये इंटीजर्स है, a एंड b इंटीजर्स भी है, तो अगर a स्क्वायर इवन है, इसका मतलब हो गया a is a even number. बराबर है? तो a भी एक इवन नंबर है. Yes, that is basically a square is divisible by 2 and a is also divisible by 2. This is other way of putting it. Okay, so let us have another number c. So we say such that, okay, तो c को कैसे लेंगे? a is a even number, which means I can write a is equal to 2c. Okay, yeah, तो a is a even number, तो मैंने बोला a is equal to 2c. Okay, अगर a 2c है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर. ओके, अभी ये a स्क्वायर को अगर मैं इधर डाल दूं ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, तो I would end up with 2b square is equal to 4c square, because a square is 4c square. इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया? तो b square
is equal to 2c square. इसका मतलब क्या हो गया कि b square is also even number. तो we can write कि b square is an even number. अगर b square even है तो इसका मतलब हो गया कि b भी even है, so b is an even number. So ये बहुत क्रूशियल है. We proved that a is also an even number and b is also an even number. इसका मतलब क्या हो गया? दोनों even है मतलब दोनों भी divisible है by 2. Okay? Now this is half proof. Okay? जहां पर अपन ने प्रूव किया है कि दोनों भी divisible है by 2. Okay? दोनों भी divisible है by 2 मतलब क्या हो गया? a और b कोप्राइम है क्या? तो नहीं है. So I'll call this as my first statement and this is my second statement. And then I can say from 1 and 2 A and B are not co-prime. क्योंकि उनका एक और नंबर है that is 2 which is dividing both A and B. तो अपन उनको कोप्राइम नहीं बोल सकते. इसका मतलब क्या हो गया? मेरा assumption incorrect है. That means so I write therefore our assumption is incorrect. मेरा assumption क्या था? रूट 2 एक रैशनल नंबर है. तो इनडायरेक्टली मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा assumption incorrect है. तो अगर मेरा assumption incorrect है तो उसका कॉन्वर्स करेक्ट रहेगा, मतलब उसका उल्टा करेक्ट रहेगा. तो उसका उल्टा क्या है? assume क्या था? root 2 is rational. उसका उल्टा क्या है? root 2 is irrational. So what is going to be correct? So root 2 is an irrational number. Therefore root 2 is an irrational number. Okay, so this is the second way of proving it. Okay, you can quickly make a note of this. Now obviously verbiage थोड़ा सा अलग है as compared to book, but I've tried to make as much logical sense as possible for this particular part. So quickly take a screenshot of this so that we can go ahead with the next part. So we have set of real numbers R is equal to set of the union of set of rational numbers and the set of irrational numbers. So if you take the set of rational numbers and irrational numbers together, तो वो बड़े वाले सेट को बोला जाएगा set of real numbers. और जो सारे numbers हैं जो generally use होते हैं in physics, maths, chemistry are generally until your 10th standard are generally going to be real numbers. फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के भी एक सेट आता है जो इमेजिनरी नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें, बट दैट इज अनदर पार्ट व्हिच इज taught in 11th and 12th. Okay, so learners, this was all about irrational numbers. I hope you've enjoyed this video. Please give us a thumbs up. It keeps me motivated to make even better videos. Please subscribe to our channel and share it with your friends. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.